شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی، جیتے رہیں، خوش رہیں۔ بہت شکریہ کہ آپ ٹائم کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے ٹاپک کو کنٹینیو کریں کہ کلوننگ کی بات ہو رہی تھی کہ مرد سے، آدم سے جو ناری نکالی گئی وہ نر سے نکالی گئی۔ آدم نے خود کہا ہے کہ یہ ناری کہلائے گی کیونکہ یہ نر سے نکالی گئی۔ یہ پیدائش کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی آیت ہے 23ویں کا دوسرا حصہ ہے۔ چلو میں پوری آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی ہے۔ نر سے نکالی گئی ہے، نر کی کلوننگ ہوئی ہے۔ اب وہ ایک ہی چیز ہے، وہ دونوں تو اس کو آگے اس رشتے کو مضبوط کر دیا گیا۔ تو آگے کہا گیا ہے، اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ ایک تن ہوں گے یعنی کہ وہ ایک تن تھے، وہ ایک ہی تن تھے اور ان ایک تن کو دو کر دیا گیا ہے۔ ایک تن سے دو کیے ہیں اور ایک کا نام ناری ہے۔ جیسے خدا جو ایل الیون ہے اس میں سے جو قوتیں نکلی ہیں وہ اس کے بیٹے ہیں، اور جو بیٹے ہیں وہ کبھی بھی کسی طور سے بھی خدا سے جدا نہیں ہیں، وہ خدا ہی ہیں۔ لیکن جیسے جو بیٹے ہوتے ہیں، جیسے کہ انسان کے بیٹے ہیں، وہ باپ کی ہی آواز ہیں، باپ کا ہی DNA ہے، باپ کی ہی ساری باتیں ہیں، لیکن باپ ہی نہیں ہیں، وہ باپ سیم ایز اٹ باپ ہیں لیکن وہ باپ سے الگ قوت رکھتے ہیں۔ اسی طرح جو خدا کی کلوننگ ہے، خدا نے خود اپنی کلوننگ کی ہے، اور جو اس کے بیٹے ہیں وہ خدا ہی ہیں۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے خدا وندوں کا خدا، جو بہت سارے اس کے بیٹے ہیں خدا کے، اور وہ بہت سارے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ابلیس بھی ہے۔ یہ بھی خدا کا بیٹا ہے، اس کی بھی پوری طاقت ہے، اور یہ خدا میں سے ہی ہیں، لیکن یہ الگ ہے، الگ قوت ہے، الگ اس کا فنکشن ہے، الگ اس کی عادات ہے۔ لیکن خدا کے یہ جو باپ ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے، اور جو بیٹے ہوتے ہیں ان میں کچھ بھی ہو لیکن باپ سے انکاری نہیں ہو سکتے۔ اسی وجہ سے ہم ایوب کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ وہ بیٹوں کے درمیان پھر رہا تھا۔ بیٹوں کے درمیان دوسرے نہیں جا سکتے، وہ بیٹوں میں پھر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے اب سوال، ابھی اس کلاس کے بعد جیسے پانی پینے کے لیے گئے تھے تو مجھے کسی نے پوچھا کہ جی اگر کسی شخص کی 2، 4، 5 بیویاں ہیں، یہ بیویاں جو ہیں بھلے کسی کی جیسے سلیمان کی 1000 کہا گیا اور داؤد کی 100 کہا گیا، کسی کی 40 تھیں، کسی کی 70 تھیں، کسی کی 500 تھی۔ ہسٹری پڑھو تو ابھی آپ افریقہ میں دیکھیں تو کسی کی 100 بیوی ہے، کسی کی 140 ہے، کسی کی 70 ہے، کسی کی 50 ہے۔ اصل میں ان سب میں جو کوئین ہوتی ہے، جو اس کی اپنی ہے، جو پیاری ہے، جو اس کو پنجابی میں کہتے ہیں سیریاں دی ویوڑ، جو سیرے کے ساتھ، جو فنکشن کے ساتھ بیائی گئی ہے، جس کے لیے تقریب رکھی گئی ہے، جس کو اس نے انگوٹھی پہنائی ہے۔ باقی تو انگوٹھیاں تو آپ بازار چلے جاؤ، آپ ہزاروں انگوٹھیاں لے لو،
वो तो फैक्ट्री है, वो प्रोड्यूस कर रही है। जितनी मर्जी अंगूठियां पहनाते जाओ, कपड़े भी जितने मर्जी किसी को पहनाते जाओ, जेवर भी देते जाओ, वो तो गिफ्ट है, किसी को भी देते जाओ। लेकिन हर गिफ्ट, हर चीज़ की वैल्यू उसकी शख्सियत से होती है। आपको दे कौन रहा है, आप दे किसको रहे हैं, ये खास बात है। जब एक उस लड़की को जो पहली है, जिसके लिए अरेंज किया गया है, जिसके लिए खुशी मनाई गई है, जिसको लेके आया गया है, और उसको अंगूठी का मतलब होता है इख्तियार देना। मैं तुझे इख्तियार देता हूँ। जैसे आदम कहता है ये मेरी हड्डियों में से हड्डी, मेरे गोश्त में से गोश्त है, ये जान जो इसकी औलाद है, ये उसकी उनकी मौजूद है, उनको पैदा करने वाली है, ये उनकी माँ है। तो अब देखो कि बच्चे तो दूसरे भी पैदा कर रही हैं, बच्चे तो मशीनें भी पैदा कर रही हैं टेस्ट ट्यूब के ज़रिए से, बच्चे तो जानवर भी पैदा कर रहे हैं। लेकिन एक है जिसको अरमान होते हैं, जो उसकी शख्सियत है, वो औरत, वो बूढ़ी हो जाए, वो जवान है, वो कमज़ोर है, वो बीमार है, वो खूबसूरत है, वो बदसूरत है, वो बड़े बालों वाली है, वो छोटे बालों वाली है, वो गंजी हो गई है, वो छोटे कद वाली है, बड़ी सुडौल है, बड़ी लंबी है, बड़े कुछ भी हो, लेकिन वो उस शख्स का हिस्सा है। आप इस बात पर औरत कभी नहीं कह सकती कि ये शख्स खुदा का बंदा नहीं, क्योंकि इसकी 2 बीवियां हैं। बीवियों के साथ खुदा का बंदा होना या ना होना ये कोई शर्त नहीं है। इब्राहिम, यकूब, और आगे आप दूसरों को देख लें, दाऊद को, सुलेमान को, क्या वो खुदा के लोग नहीं हैं? लेकिन जो क्लोनिंग है, जो एक है, जिसको उसने अपने लिए चुन लिया है, वो एक ही है। खुदा में से बड़े सारे निकले हैं, बेटे हैं, सराफीम हैं, करूबी हैं, और मैसेंजर हैं, वॉरियर हैं, प्रोटेक्टर हैं, हेल्पर हैं, ये सब के सब खुदा का ही हिस्सा हैं। लेकिन जो बेटे हैं उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। इसलिए और बेटे जो हैं वो कभी अपने बाप के खिलाफ नहीं होते। इब्लीस भी खुदा के खिलाफ नहीं है, ये बात कान खोल के सुन लें। इब्लीस खुदा के खिलाफ नहीं है। मैं फिर कहता हूं, इब्लीस खुदा के खिलाफ नहीं है। इब्लीस अपने बाप के खिलाफ नहीं है। इब्लीस किसके खिलाफ है? उस रूप के खिलाफ है जिसका नाम यस्सु है। एल एलोन के खिलाफ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो खिलाफ है कि ये जो तेरा रूप है, कई दफ़ा होता है बाप अपने बड़े बेटे को या अपने जो उसके बेटे हैं उनको काम दे देता है, वो कर रहे हैं अपना अपना काम, लेकिन कभी वो कहता है ये मैं करूँगा। तो कई दफ़ा बड़ा बेटा, मैं भी अपने घर में बड़ा हूँ, मैं भी अपने बाप के साथ कई दफ़ा चिढ़ जाता था। वो कहते थे अच्छा मैं ये काम कर देता हूँ, मैं कहता था आप क्यों कर रहे हैं, मैं जब हूँ तो मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं मैं भी ये, मैं कहता हूँ नहीं आप ना करो। तो ये जो उसका ये किरदार था कि ये मैं ही करूँगा, निजात का काम मैं ही करूँगा, छुटकारे का काम मैं ही करूँगा। वो कह तू कैसे करेगा? जैसे बाप कह देता है अच्छा ये मैं कर दूंगा ना, तो अब्बा जी या पापा जी या डैडी आपने तो इस तरह का सूट बूट पहने हैं, आप तो इस तरह से वेल ड्रेस हो, तो आप क्यों करें? वो कहते हैं नहीं मैं ये कपड़े उतार कर मैं ये वाले कपड़े पहन लूँगा ताकि मैं ये काम कर सकूँ। और वो बच्चा क्या करता है कि कई दफ़ा वो कपड़े उठा के भाग जाते हैं, नहीं नहीं पापा जी आप ये कपड़े ना पहनो, आप बस जैसे हो आप सोने लगते हो, आप ऐसे ही ठीक है। और बाप नाराज़ हो जाता है, तुम्हें नहीं पता, ये मैं खुद करूँगा, तुमसे नहीं हो सकता। तो यही जो एल एलोन बाप है, जिसने बेटे पैदा किए हैं, जिसने कायनात को खलक किया है, जो पूरी कायनात का बाप है,
वो कहता है ये नजात का काम मैं खुद ही करूँगा। ये इब्लीस को अच्छा नहीं लगा। हिंदू भी खुदा को मानते हैं, मुसलमान भी खुदा को मानते हैं, सब उसको बाप मानते हैं। वो सब कहते हैं वो जो सबका बाप है, वो जो सबका, इस ट्यून में मुसलमान हिंदू सब कहते हैं कि वो सबका खालिक है, वो सबका मालिक है, वो सबका राज़िक है, वो सबका बाप है, वो अल हक है, वो गयूर है, वो रहीम है, वो कबीर है, वो अल जबार है, वो ये सब कुछ मानते हैं। लेकिन नहीं मानते कि वो बेटों की तरह काम करे, वो बेटे के रूप में, जैसे अगर वो एक बेटे की शक्ल में आ जाए, ये नहीं मानते, ये नहीं मानना चाहते। और यही बात है जो अबतरी की बात है कि मसीही जो है वो यस्सु को खुदा कहते हैं, क्योंकि मसीहों ने उसको मान लिया है, जान लिया है कि वो खुदा है। इसीलिए उसको कहा गया खुदावंदों का खुदा। मकाशवा की किताब में लिखा है खुदावंदों का खुदा। लेकिन वो इस बात पर बज़िद हैं, जो बेटे हैं, जिनमें इब्लीस भी है, वो कहते हैं कि तू जो एल एलोन गॉड है, तू जो खुदावंदों का खुदा है, हम नहीं चाहते कि कभी तू, कई दफ़ा जो बच्चे वेल सेटल हो जाते हैं वो कहते हैं अब्बा जी हम नहीं पसंद करते कि आप ये काम करें, आप गाड़ी ड्राइव करें, आप दुकान पे चले जाएं, आप बिजनेस पे जाएं, हम हैं ना। वो कहता है नहीं मैंने भी करना है, तो वो बाप के साथ चिढ़ जाते हैं। तो ये दूसरे जो बेटे हैं ये बाप के साथ चिढ़े हुए हैं, इसलिए कि वो इस रूप में क्यों है, वो इस रूप के ही खिलाफ हैं, वो इस गलाफ के ही खिलाफ हैं, वो इस इमेज के ही खिलाफ है। और उस इमेज का नाम यस्सु है, इस गलाफ का नाम यस्सु है। जब वो इस गलाफ में नहीं तो उसको पूजते हैं। जब वो पहाड़ पे गया तो वो नूर में आ गया, तो दूसरे फरिश्ते उसके करीब आके बातें कर रहे हैं। जब वो बियाबान में था तो इब्लीस के साथ बातें हो रही हैं, और इब्लीस को नहीं पता कि ये वही बाप है, और इब्लीस उसके साथ बातें कर रहा है। तो एकदम से उसने कहा इब्लीस ने कि मुझे तू सजदा कर दे। तो उसने अपनी उसी ट्यून में, उसी टून में, उसी आवाज़ में, उसी गर्ज में, उसी जोर में, उसी पावर में, उसी जलाली आंखों में, उसी जलाली रोब में, जो मकाशवा की किताब पहले बाब में लिखा है, इब्लीस के साथ बात की तो वो भाग गया। और दूसरे फरिश्ते जान गया कि यही है एल एलोन, यही है खुदावंदों का खुदा, यही है बाप। उन्होंने एकदम से उसकी मिनिस्ट्री की, उसकी खिदमत की, उसके हुजूर झुक गए, उसकी जय जयकार करने लगे। तो ये बात भेद की है कि अगर बीवी जान जाए कि मैं जिसको शौहर कहती हूँ, जिसको तू कहती हूँ, जिसको कहती हूँ कि तू कौन है, तो मैं तुझे क्या समझती हूँ, अगर वो ये जान जाए कि मैं ही हूँ जो इसका हिस्सा हूँ, मैं इसके साथ धोखा नहीं करूँगी, मैं इसको अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको डिग्रेड नहीं करूंगी, मैं इसकी इंसल्ट नहीं करूंगी, मैं पैसे चोरी नहीं करूंगी, मैं कपड़े चोरी नहीं करूंगी, मैं इसकी इज्जत किसी और को नहीं दूंगी। हरामकारी का मतलब सिर्फ ज़नाकारी नहीं है, हरामकारी का मतलब सिर्फ सेक्स करना नहीं किसी और के साथ। हरामकारी जो है वो ये है, ज़नाकारी ये है कि आप अपने शौहर के आगे झुकने के अलावा किसी और के आगे झुकती हैं, किसी और की बात मानती हैं, किसी और को सुपीरियर समझती हैं, क्योंकि आप किसी और से नहीं निकाली गई। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप किसी और से के लिए नहीं हो। जो आपकी है और जो आपका है, आप एक हो, हड्डियों में से हड्डी, गोश्त में से गोश्त। और ये जो इधर दाएं बाएं सहेलियां और दाएं बाएं बीवियां, किसी की 1000, किसी की 100, किसी की 500, किसी की 70, किसी की 3, ये वो नहीं है जो आपकी हड्डियों में से हड्डी है। ये आपका एक तरह से जलाल है, ये आपका रोब है। इसको गलत ना लें, ये मैं एक फ़र्क तरीके से बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि जलाल कायम करना शुरू कर दें, एक की रोटी पूरी नहीं हो रही,
टांगों में जान नहीं है, खांस खांस के रात को जगा देते हैं, सांस चढ़ जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, दिमाग ठीक नहीं है, जोड़ों की प्रॉब्लम है, आंखों की प्रॉब्लम है, लुकनत है, बोला जाता नहीं, दांत टूटे हुए अपना जलाल बना रहे हैं। ये मेरा जलाल है, ये भी मेरी सहेली है, ये भी मेरी सहेली। ये देखो पहले आपके पास है कितना। खुदा की खुदाई और ईमान की बुनियाद बीवियों पर नहीं है, बीवियों की वजह से नहीं है। बीवियों के अगर बुनियाद होती तो दाऊद का खुदा खुदा ना होता, सुलेमान का खुदा खुदा ना होता, इब्राहिम का खुदा खुदा ना होता, मूसा का खुदा खुदा ना होता, जदौन का खुदा खुदा ना होता। वो उनका खुदा है, लेकिन उसने बनाई एक है आपसे, कॉलोनी आपकी एक की है। ये नहीं कहा कि अब मशीन लग गई कि बस आदम से बनाते गए। बीवी के लिए इतना ही है सिर्फ कि अपने शौहरों के ताबे रहो, बस, क्योंकि आप उससे निकाली गई हो। मैं ये नहीं कह रहा आप उससे निकाली गई हो, ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं आप उससे निकाली गई हो, आप एक हो। दूसरी जो बाद में आती हैं वो एक हिस्सा हैं, वो रौनक हैं, अगर वो उस रौनक को कायम रख सकता है। पंजाबी में जो कहते हैं कि डंडा पट्टा च जान है, बैंक विच जान है, घर वड्डा हैगा, घर बड़ा है, पैसा है, सेहत है, जहो जलाल है, रोब दाब है, फिर तो है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं तो ऐसे बत्तियां जला के तो अपने करीब रखना कि जी ये मेरा जलाल है, ये मेरा नूर है। बहुत ही ज़्यादा बत्तियां जला के बैठ जाओगे तो अपने कपड़ों को ही आग लगा के बैठ जाओगे। यही रौनकें आपको जला देंगी, यही रौनकें आपको ख़त्म कर देंगी, यही रौनकें आपको तबाह कर देंगी। इसलिए मेरी बहनों, इस बात को ख्याल में रखो कि आपको जो शेरों के साथ, जो गाने और अंगूठी के साथ, जो बंधन के साथ बांधी गई हैं, आप जिसके साथ बांधी गई हैं, अगर उसकी आपको समझ आ गई कि वो आप उसकी कॉलोनी हो, आप उससे निकाली गई हो, तो उसको अव्वल दर्जा दो। और अगर आप समझती हो कि मैं इसके लिए नहीं हूँ, और बंदा भी समझता है मैं इसके लिए नहीं हूँ, तो हट जाओ, सारी ज़िंदगी अजाब में ना पड़ो। कलाम ये साफ तौर पे इजाज़त देता है कि अगर नहीं रह सकती तो छोड़ दो। क्यों अजाब में पड़े रहना है? क्यों? दो तरह की सलीब होती थी। एक सलीब थी जो लकड़ी की है, और एक सलीब, एक सज़ा थी कि जिसने किसी को मारा है वही उसकी कमर पे बांध दो। तो अगर उसकी आपका ज़हन नहीं मिल रहा, आपकी सोच नहीं मिल रही, आप उसकी इज़्ज़त नहीं कर सकती, आप उसके साथ चीटिंग कर रही हो, आप उसके पैसे चोरी कर रही हो, आप उसकी इज़्ज़त किसी और को दे रही हो। ज़रूरी नहीं कि आप किसी के साथ बॉडी रिलेशन रखती हो, अपने भाई को इज़्ज़त दे रही हो, या माँ को इज़्ज़त दे रही हो, या बहनों को इज़्ज़त दे रही हो, आप ज़नाकार हो। अपने शौहर की इज़्ज़त किसी को दे रही हो और शौहर की परवाह नहीं कर रही, आप सीधी दोस्त की हो, आप सजा आप पर लागू हो चुकी है। इसलिए खुदा ने मर्द को इज्जत दी है। मर्द के बगैर आप कुछ भी नहीं हो। इस आयत को जुबानी ना याद रखो, ना कोई मर्द रहा ना औरत रहा, वो एक और बात है। मर्दों की जो पालूस ने वो आयत कही है कि ना कोई यूनानी रहा, ना कोई यहूदी रहा, ना कोई स्कूती रहा, ना कोई मर्द रहा, ना कोई औरत रही, वो एक ईमान की बात है। ये मतलब नहीं कि घरों में आके तो अब कोई मर्द नहीं रहा, कोई औरत नहीं रहा, इसको गलत इंटरप्रिटेशन ना करें। और फिर आपकी जिंदगियां, आपके खानदान, आपका अज़दवाज इतना अच्छा हो जाएगा। आप पैराडाइज में रहोगे, आप अदन में रहोगे, आप खुदा की हुजूरी में रहोगे। लेकिन अपने शौहर के साथ मुकाबला करोगी तो ये ज़हन में रखो कि आप 1% हो और वो 99% है। अगर 99% ना होता तो कभी यीशु उस औरत को ना कहता कि जा अपने शौहर को लेके आ। जब इब्राहिम ने दुआ की तो बरकत मिली, इसहाक ने दुआ की तो रिबका को बरकत मिली, यकूब ने दुआ की तो औरत को बरकत मिली, फिर उनके रहम खुल गए। मर्दों की दुआ से आसमान खुलते हैं और रहम खुलते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और समझने की तौफीक दे। जय मसीह की। फिर हम किसी और सेशन में इसको